everybody. Is there anybody hear me right now? Please respond it to me with the text, then I will know about it. Hello everybody and Assalamu alaikum. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से जो भी ऑनलाइन आए हैं वो कमेंट कर दें इसके ऊपर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि who's coming there. Then it will be easy for me to communicate with you guys, and then after that I 5 बंदे मेरे पास ऑनलाइन अभी नजर आ रहे हैं. Can you guys please hello, do you hear me? If somebody is आप में से जो लोग प्लीज मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग टेक्स्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूंगी. Because they are coming. I will see here as well. I cannot see any text here, so how I know that you guys are here and watching? Please send me something, so that would be great. Hello everybody. Yeah, Hira is come here to watch me. This is the first one which I saw that. Hira, can you text me here? Then it will be easy for me to know you are here. Are you guys listening to me? I don't hear any voices. Okay guys, I will start it right now. What I'm here, I will just give you my introduction first. That you guys will see me. How am I? I will give you my little introduction. My name is Fawzia Iram, and I'm basically calling from, and you guys are watching me from Oslo, Norway. I don't know which medium you guys like it. I will talk in Urdu, English, both is very easy for me to do that. I will highly appreciate you guys if you will send me some text here, then I will know about it. If you guys are here to watch me, just wave me, give me some messages, so it will be easy for me to know. Okay, so I will start it right now. मेरा main purpose, I will come in Urdu. Mix blend करती रहूँगी मैं इस चीज़ को. Blending होती रहेगी in Urdu और English in both. मैं यहाँ पे जो मेरा पर्पस है आप लोगों के सामने आने का वो ये था कि अभी रमज़ान इज़ कमिंग, और आप लोग चाह रहे होंगे कि रमज़ान के अंदर कुछ डिफरेंट, कुछ हट के, कुछ इंस्टेंट, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जब रमज़ान आते हैं तो वी फील सो टायर्ड. हमारे साथ बहुत मुसीबत होती है इस चीज़ के अंदर, के बच्चे भी होते हैं घर के अंदर, सेम टाइम लोग भी होते हैं. वी वांटेड टू डू इट लॉट्स ऑफ थिंग्स एवरी डे. वी नीड सम डिफरेंट वैरायटी, ताकि लोगों को एक जैसी चीज़ें खा के बोरियत भी ना हो, और उन लोगों को एक जैसी चीज़ें खा के आपको एक दफ़ा मज़ा अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे वही नेक्स्ट डे थिंग्स आर गोइंग सेम, सो आप जो है वो थोड़ा गिव अप करना शुरू कर देते हैं कि एक जैसी चीज़ें. तो आना चाहिए इसमें कुछ वैरायटी. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू. जो मैंने आप लोगों के लिए आज का जो मैंने रखा है कॉन्टिनेंटल कुजीन, वो था टूना फिश के साथ. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रो. I live in Norway from 2013. मैं यहाँ पर आई थी और उसके बाद से मैंने डिफरेंट अपनी जॉब्स की हैं. जो मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ इन दिस गॉन, ये मेरी एक हॉबी है जिसके अंदर Maha, I cannot say it. I just say it that people are watching in it. So मैं अगर अपने commenting देख रही हूँ तो it's not coming here, but I will see on my laptop as well. Then I will start it with the same time.
guys, I can see it. Although it's not visible from my side because I can see only 3 and 4 guys are watching here to me. There are lots of 14 people are there who is just actually my mobile was broken yesterday, so it's very difficult for me to see that. It's not coming, it's not coming. What should I do? Yes. Now first I have got it. This is Saima Sheikh. Hi Saima, hello. Hello. Welcome here. Atiya Fahim is here. Hello Atiya Fahim. Hira Abir is here. Hi Hira Abir. That's a very good thing to see you two guys here. आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं. मैंने सोचा था कि मैं आपको पहले स्टार्ट करूंगी कि व्हाट आई वांटेड टू मेक इट टू फील कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ इस चीज को एंजॉय करें, लेकिन सेम टाइम मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट बातें भी आप लोगों के साथ हो जाए. हम जब मोस्टली स्पेशली हम खवातीन जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो वी फील इट्स अ वेरी बिग हैसल फॉर अस. अगर आपको याद हो कि जब आपकी अपने चाइल्डहुड में जाइए तो आप देखिए कि आपकी जो पेरेंट्स के कोई दावत होती थी तो आपने देखा होगा कि घर की जो खवातीन होती हैं उनको 1 से 2 दिन या बाज़ दफ़ा 1 हफ्ता प्लानिंग के लिए लगा करता था और फिर 2 दिन लगते थे कि वो खाने को बिल्कुल बना रहे होते थे, उसमें पूरी तरह से पागल हुए होते थे. और फिर जब वो काम करते थे अस्सलाम वालेकुम साइमा शेख, तो फिर उसके बाद वो खाना आपके सामने आता था. 4-5 डिशेज होती थी टिपिकल टाइप की जिसके अंदर कोरमा, बिरयानी. हाय आयशा, हाउ आर यू? So it's good. अब मैं आपको तो Saima has okay Maha, I got it that. I will check it there as well. तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से being a woman आप फील करें अपने आप को प्राउड कि खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमें खाने की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. जब हम कोई खाना बना रहे होते हैं तो अगर हमारे जहन में ये चीज़ नहीं होगी कि ये वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से कमाते भी हैं हम, कोई बड़ा इवेंट आता है उसका भी मेन रीज़न ही होता है कि आपका खाना उसमें एक मेन जो होता है ना कोर्स, वो चीज़ होती है. मिसाल के तौर पर बर्थडे, खाने में क्या है, फ्रेंड्स होते हैं तो कहते हैं यार ट्रीट दो हमें. आपके घर में कोई दावत होती है, खाना, कोई बच्चा पास हुआ है तो खाना. इवन मरना जीना सब चीज़ों के ऊपर जो मेन चीज़ होती है हमारा फोकस, वो खाना ही होता है. रिस्क जो आपके पास होता है. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब खवातीन खाना बना रही होती हैं तो उनके ऊपर ऐसे होता है कि यार क्या बनाया जाए, खाने में क्या किया जाए, किस अंदाज से हम ये बताएं कि यार कोई स्पेशल चीज़ जो है वो हम उसके अंदर देना चाह रहे हैं आपको. तो जब मैंने स्टार्ट की खाना बनाना तो मैंने अपने एक पैशन को इसके अंदर शामिल किया. मैंने सोचा कि जब आप खाना बनाते हैं तो इसके अंदर आपकी सोल कनेक्ट होती है. आपका जो मूड होता है ना खाने का बनाते हुए, आप यकीन जानिए वही आपके खाने में आता है. मैंने अपनी मदर से सुना था और बहुत सारे और लोगों से भी इस बात के बारे में सुना कि जब आप खाना गुस्से में बना रहे होते हैं, झुंझलाहट में बना रहे होते हैं, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दैट वो खाना जब लोग खा रहे होते हैं उनमें आपका वो मूड ट्रांसफर हो जाता है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एंड मेकिंग फूड, ट्रस्ट मी पीपल विल फील, ऑल्दो खाना इज सो डिलिशियस, आप उसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन वो फीलिंग जा रही होती है उसके साथ. अब जब आपने एक अच्छे मूड के साथ खाना ही नहीं बनाया तो वो जो खाने वाला है ना वो फील तो करेगा कि उसे खाना खा लिया है, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना गुड सेटिस्फेक्शन वाली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाली, दिस नॉट कम्स. थैंक यू सो मच फिजा, आई ऑल्सो लाइक टू बी हेयर विद यू गाइज. तो आप जब खाना बनाया करें, एक तो पहली चीज़ आप अपने आप को जब खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा 2 मिनट दें एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. हर खातून, हर लड़की, अल्लाह ताला ने जो औरत बनाई है ना वो ब्यूटीफुल बनाई है. डिस्पाइट दैट आपको किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके बहन भाइयों की तरफ से, आपके फादर की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आप उन तमाम चीज़ों को हटा के सिर्फ ये सोचने की कोशिश कीजिए यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन. अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज़ दिया है कि यू आर अ वुमन, एंड वुमन वो का मतलब ही ब्यूटी है. आप जब भी किसी मर्द से या किसी से पूछे ना जहन में उसके क्या आता है वुमन को सोच के, तो वो बताएगा वुमन मीन्स ब्यूटी.
हमारे एशियन कंट्री के अंदर खातून जो है वो जिस तरह से सप्रेस की जाती है, मैं बात नहीं करूंगी, वो काफी उसके अंदर आजकल पोलिटिसाइज हो रही हैं चीजें, उन चीजों को नेगेटिव नाम देके कुछ कम ऑर्गेनाइजेशंस ने हाईजैक कर लिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, वुमेन नेम्स ब्यूटी। आप जब भी काम करें, आप कोशिश ये करें ओके, थैंक यू सो मच बिशरा। तो आप ये कोशिश किया करें कि यू फील प्राउड। आपको अल्लाह ताला ने एक टास्क दिए खाना बनाने की, ये काम मर्द करते हैं। आपको आप देखिए, दुनिया में सारे बेस्ट काम जो होते हैं उनके नेम टेक्स जो आ रहे हैं ना, वो मर्दों के साथ होते हैं। सबसे अच्छा हलवाई मर्द, टेलर मर्द, गायनाकोलॉजिस्ट मर्द, जो हाई लेवल के ऊपर आ रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्होंने दिए। लेकिन जो ग्राउंड बेसिस के ऊपर काम करने वाली शख्सियत होती है ना, जो एक फैमिली को बिल्ड करती है, वो औरत है, जो कि इन चीजों को लेके चल रही होती है। तो मेरी अपनी फीलिंग ये होती है, व्हेन आई स्टार्टेड दैट प्रोफेशन, मैं आप कहूंगी ये प्रोफेशन है क्योंकि ये मेरी हॉबी था। मैं आपको कहूंगी कि जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, आई फील सो सेटिस्फाइंग, क्योंकि जब मैं खाना बना रही होती हूँ, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। आप सब कुछ भूल जाएं, आप जाएं। एक बड़ी अच्छी आपको रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। व्हेनेवर यू विल, आप जब भी खाना बनाने की कोशिश करें, आप वुजू करें, वुजू करके आइए और खाना बनाइए। जब मैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी अम्मी ने मुझे एक चीज़ कही थी और उस टाइम पे मैंने अप्लाई की थी। और उसके बाद आज भी बहुत सारी जगहों पे, और स्पेशली आप लोग रमज़ान में भी करते होंगे ये वाला काम, आप जब वुजू कर रहे होते हैं ना, देन यू फील इट कि आप एक टास्क के लिए जा रहे हैं। आप प्रिपेयर अपने आप को कीजिए, तो आपको जो हैसल है ना किचन में घुसते ही एकदम से, आज क्या बनाऊं यार, रोज की मुसीबत, दिमाग खराब हो जाता है यार खाने का सोच के। आता है ना आप लोगों के जहन में ये ख्याल? आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट खाना कैसे बनता है विद अ वेरी हैप्पी मूड, और आप उसके साथ इंजॉय करेंगे। इंजॉय डजंट मीन दैट, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है अपने किचन के अंदर उन्होंने टेप रिकॉर्डर रखा होता है, सिंगिंग एंड डांसिंग चल रही होती है और उसके साथ वो खाना बना रही होती है। डोंट डू इट, टेक इट एज ए स्पिरिचुअल। आपका सोल कनेक्ट हो रहा है आपके खाने के साथ। आपके फूड में क्या चीज है, आप जब आप खाना बना रहे होते हैं, गोश्त जाके गोश्त को लगता है। आप जो भी चीज खा रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ जा रही होती है? डिस्पाइट दैट वो जो बेकार सामान है वो निकल के आपका शिट बन रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें आपके अंदर बिल्ड हो रही होती है वो कहाँ कहाँ लग रही होती हैं? डेफिनेटली वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपको एक बेहतरीन सिस्टम देने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। आप जब ये सारी चीजें उनको दे रहे होते हैं ना अपनी बॉडी को, तो जब आपने दिया ही गुस्से से, मिसाल के तौर पर मैं आपको खाना देती हूँ अभी, और खाना मैं आपके सामने बड़ी खूबसूरती के साथ रखती हूँ, और दूसरे टाइम पे मैं आपको रख के दूं तो आप ये कहेंगे यार ये क्या खाना दिया है, ले खा मर। फीलिंग ही नहीं आती है आपको, तो आप सिर्फ उसको डस्टबिन के अंदर डालते हैं अपने मुंह के जरिए, और वो डस्टबिन के जरिए वो दोबारा शिट बन के निकल जाता है। मैं आपको कोशिश करूंगी ये बताने की, इंस्टेंट खाना खूबसूरती से, मजेदार तरीके से एंजॉय करते हुए आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही यूं कहना चाहिए आपको कि बहुत ही लाइट एक खाने के तौर पे एक स्नैक्स होते हैं, जो हमारी कबाब हैं। कबाब डिफरेंट टाइप के बनते हैं। मैंने अभी जो आप लोगों के लिए सोचा था विच वॉज टूना। मुझे नहीं पता कराची के अंदर, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैंने वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की और उस वक्त टूना मैं खरीदा नहीं करती थी। यहाँ 7-8 साल से रहते हुए आई एम जस्ट यूजिंग, इट्स अ वेरी पॉपुलर और वेरी इंस्टेंट, आप आराम से मिल जाते हैं। टिन्स मिलते हैं हमारे पास यहाँ पे। मेरे पास जो टिन मिलते हैं वो टूना फिश के नाम से टिन्स होते हैं हमारे, और उसके अंदर हमारे पास टूना फिश होती है। मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा ये जब भी आप ये टिन लें टूना फिश के, वो ऑयल में नहीं लेंगे, जेल में नहीं लेंगे, ये सिर्फ वाटर के अंदर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो ऑयल लिखा होता है वो आपका कोई अच्छा ऑयल नहीं होता, उसके अंदर सनफ्लावर ऑयल होता है या दूसरे ऑयल होते हैं जिसके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं। अगर आप वाटर वाला लेंगे तो वाटर वाला लेने में इट सेम्स इन कुजीन एज, थैंक यू बुशरा। तो आप जब ये वाला टिन आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ वाटर है। तो जब वाटर आप सोक कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप टूना को यूज कर सकें। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ वो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं कैमरा को स्विच करूंगी। जब मैं अपना कैमरा स्विच करूंगी तो उसके बाद मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी उस टाइम पे। आई विल जस्ट ट्राई टू चेक इट। I know I will my husband today from it. Okay, parking can today. First time he says
कमाल बिरयानी, सी दैट, आप देखें वहां, डेफिनेटली ये आपको एक बहुत प्यारा इफेक्ट देता है। थोड़ा सा आपका मूड अच्छा हो, आपको अपने तौर पे एक एनर्जी निकलते हुए खुद फील होती है, और वो आपके पास से जो एनर्जी निकल रही होती है वो दूसरों तक इंस्टेंट पहुंच रही होती है। वहां आपकी एग्जाम्पल है इसके अंदर मौजूद। हम कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, मैं आपको कोई हैंकी पैंकी नहीं बताऊंगी, मैं आपको कोई ये नहीं दिखाऊंगी कि लग्जरियस किचन है मेरे पास या कोई चीज है। नो, आई हैव अ वेरी सिंपल किचन। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरे पास आपको किचन ऐसा नजर आ रहा है आप वाओ कहें या कोई चीज, 90% पीपल हैव अ सेम। यहाँ का कल्चर ऐसा है, वो लोग काफी अपने किचन को कंपैक्ट और इस तरह से रख रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज, कम टू द पॉइंट, टूना फिश के आप कितने बनाना चाह रहे हैं, इस एक के अंदर आप आराम से 3 कबाब बना सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी कैसे। टूना फिश कितनी होती है वो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी। टूना फिश के साथ साथ आई विल जस्ट स्विच इट माय, इसी के साथ साथ ही रखते हैं, मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। टूना फिश के साथ मैं जो इस्तेमाल करूंगी, पोटैटोज इस्तेमाल करूंगी। मैं आपको पोटैटोज भी अभी आपको आगे दिखाऊंगी। पोटैटो मैंने बॉईल किए हुए हैं। जितनी आप टूना ले रहे हैं उससे हाफ पोटैटो होने चाहिए। पोटैटो बेसिकली बाउंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपको टेक्सचर भी अच्छा देते हैं। आप उसकी जगह कोई और चीज भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप दाल इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इंस्टेंट के लिए किया है। ये चीजें आपको विद इन 5 मिनट्स यू गाइस विल मेक अ वेरी अमेजिंग टूना फिश कबाब। जर्नल चीजें आपको चाहिए होंगी इसके लिए, वो यहाँ मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, बाद में आप देखेंगे मेरे साथ साथ। मैंने आपके लिए टूना फिश लिए हैं, टूना फिश के साथ मैंने पोटैटोज लिए हैं। पोटैटोज बॉयल होने चाहिए। अच्छी चीज एक और आपको बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोटैटोज जो है वो आपके वाटरी ना रहे, तो आप जब उनको उबाल लेते हैं ना, उबालने के बाद आप उनका पानी निकाल के आप उनको किसी पेपर या फिर उसी पतीली में या किसी में आप उनको ओवर द नाइट या ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, वो सारा वाटर जो होता है ना वो उसमें से निकल चुका होता है। लाइक दिस, इट्स अ बॉइल्ड। आपको नॉर्मल लग रहा है ना, बट इट्स बॉइल्ड। सी, लेकिन आप देख रहे हैं कितना स्मूथ है, इसके अंदर आपको पानी नहीं नजर आ रहा कहीं से भी। तो अगर आप निकालेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप इसको रख भी देंगे ना, ये आपके आराम से 1 से 2 दिन आराम से आपके फ्रिज में रह लेते हैं। तो आप जब, जैसे आप रमजान के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप इनको बना के आप फ्रिज में उठा के रख दीजिए, नो इशू फॉर दैट, नॉट इन फ्रीजर। कुछ हमारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो फ्रीजर में रखने की नहीं होती हैं, कुछ हमारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आप नॉर्मल फ्रिज के अंदर और बाहर रख सकते हैं। तो पोटैटोज को आप बनाइए और बना के आप इन्हें अपने फ्रिज में रख दीजिए। मुझे अनियन चाहिए होंगी, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे पास काफी बड़ी बड़ी अनियंस होती हैं। तो आप अनियन जितना आपको टेस्ट पसंद है, आई लव अनियन, मुझे अनियन, गार्लिक और जिंजर जो है वो हर चीज के अंदर बहुत पसंद है। नॉर्वेजियन पीपल बाय द वे लव अनियन, वो लोग बहुत अनियन इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें अनियन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स और है इसका, वो मैंने अपने पास तो वैसे चाट मसाला बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो नॉर्वेजियन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के चाट मसाले हैं। ये चाट मसाला अगर आप देख रहे होंगे, ये चाट मसाला है लेकिन इसको चना चाट भी कहते हैं साथ में। ये फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है जो भी आपका चाट मसाला फ्रूट के लिए इस्तेमाल होगा वो आप बेहतरीन तौर पे देख सकते हैं कि वो चाट मसाला जो होगा वो आपका सिर्फ लाइट होता है। नॉर्वेजियन पीपल डोंट लाइक सो मच स्पाइसी थिंग्स, उनको टेस्ट चाहिए होता है, उनको स्पाइसेस नहीं चाहिए होते। तो ये फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा जब हम फ्रूट पे डालते हैं तो वो वाला स्पाइस नहीं होता है जो आपका चना चाट के लिए होता है। तो ये वो वाला स्पाइस है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जब आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो आप चूंकि अपने लिए भी चाह रहे होंगे तो आप चाहेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो आपके पास। ओके माँ, सऊदीया में डेफिनेटली ये वाली चीज होती होगी, आई डोंट नो अबाउट इट। तो मैं इस्तेमाल करूंगी आपका नॉर्मल चाट मसाला और थोड़ा सा स्पाइसी एक्स्ट्रा चाट मसाला, क्योंकि आई लव स्पाइसेस। जब आप कबाब खाते हैं तो आपका दिल चाहता है ना कि आपके कबाब जो है उसका ऑलरेडी अपना स्पाइस भी जरा जबरदस्त सा हो। बीइंग एशियन पीपल, स्पेशली पाकिस्तानी, हम लोग जरा कोशिश करते हैं। मैं दोनों की ब्लेंडिंग करूंगी आपकी इसके अंदर। इसके अलावा आपको चाहिए होंगी सॉल्ट, चाहिए होगा। मेरी कोशिश होती है, हम यहाँ पे रह रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है अगर आप ये वाला अपना पिंक वाला हिमालय सॉल्ट इस्तेमाल करें और आप रमजान में करके देखिएगा, प्लीज अवॉइड व्हाइट सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट इज सो डेंजरस।
ये रिफाइन हुआ हुआ होता है, ये आपके लिए और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको अगर याद होगा कि पुराने हमारे पास एक आया करता था वो ब्राउन कलर की पैकिंग में इन द बिगनिंग, मेरी एज के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन अगर आप अपना ये पिंक वाला इस्तेमाल करेंगे, पिंक हमारा सॉल्ट है, ये स्पेशली पाकिस्तान का सॉल्ट है, यहाँ पे ये बड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। नॉर्मल आप ले लेके जाएंगे ये 6 टाइम ग्रेटर एक्सपेंसिव है देन नॉर्मल, और ये पाकिस्तान का है हिमालय सॉल्ट। हमारा वैसे एक्सपोर्ट होता है। बट ब्लैक पेपर चाहिए होगा आपको। ब्लैक पेपर के साथ अगर आप चाह रहे हो कि आप ब्लैक पेपर की जगह व्हाइट पेपर इस्तेमाल करें, रेड पेपर इस्तेमाल करें, वी हैव अ डिफरेंट वराइटीज ऑफ पेपर। तो आप चेक कीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर जो है वो सूट करता है। ब्लैक पेपर इज यूनिवर्सल, लेकिन अब जो है आपको पता है कि अब हम मीडिया के थ्रू इतने ग्लोबलाइज हो चुके हैं कि हमें हर जगह से पता चल रहा होता है कि किस किस किस्म। वालेकुम अस्सलाम उस्मा, हाउ आर यू? उम्मे अरियान, वालेकुम अस्सलाम उम्मे अरियान, हाउ आर यू? तो जब हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रबिया, okay Rabia, you are also using pink one, that's the very good thing. Yes, I saw this brown packet of salt in my mom's chicken. बिल्कुल बिल्कुल, आप जो किचन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप यकीन जानिए it's very good for health. रमजान में जब हम खाना बना रहे होते हैं तो मोस्टली हमारे हर खाने के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज डलती है जो खाने की टेबल तक पहुंचती है, नमक होता है। आपको पता होना चाहिए कि विच सॉल्ट आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लो सोडियम सॉल्ट बिल्कुल सही है बिनते इकबाल, आप सही कह रही हैं, लो सोडियम सॉल्ट भी आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो आपका हिमालय सॉल्ट है ना, जो आपका जो पिंक सॉल्ट है, आप जो चीजें भी इस्तेमाल करना चाह रही हैं वो अपग्रेडेड वर्जन्स के अंदर आ रही हैं कि ये हेल्दी हैं। मीडिया जो कह रहा हो, आपको ये नहीं पता होता वो ऑथेंटिक है। डोंट रिलाई ऑन मीडिया अंटिल अनलेस यू प्रूव इट, यू सर्च इट। आप सर्च करो, उसको प्रूव करो, एंड देन आफ्टर दैट आप इस्तेमाल करो। लेकिन जो पुरानी आपके पास जो चीजें मौजूद है ना, ट्रस्ट मी, अनडाउटेबली इज द बेस्ट वन। मेरी अपनी कोशिश होती थी कि मैं जब पाकिस्तान से हूं तो कम से कम मेरे पास ये चीजें हों, लेकिन अब चूंकि आपको हर जगह अवेलेबल है, देन यू कैन यूज इट। ओके, ये चीजें हो गई आपकी। इसके अलावा आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे नहीं पता आप कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोशिश होती है लिटिल बिट ऑलिव ऑयल। ये आपका जब आप फ्राई कर रहे होंगे आपको ऑलिव ऑयल की जरूरत पड़ेगी। मैंने चूंकि ये मेरे पास जो ऑलिव ऑयल है इसके ऊपर नेम टैग आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसका रीजन ये है कि ये हमने स्पेशली मैंने जो है, ये मेरे एक फ्रेंड हैं यहाँ पे, जब मैं शेफ एज ए शेफ काम कर रही थी तो वहाँ पे जो मेरे कुलीग थे तो उन्होंने वहाँ पे एक ओरिजिनल हमें जो है वो ऑलिव ऑयल मंगा के दिया था। ये स्पेशली आया हुआ है फलस्तीन से, तो ये फलस्तीन का है, दैट्स व्हाई आई लव इट। देन आई एम यूजिंग इट। आप कोई भी वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जो भी आप चाहें, क्योंकि हम जो फ्राई करेंगे वो फ्राई करेंगे हम बहुत ही शैलो माइनर, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपके जो कबाब होंगे वो इट्स हैज टू बी सो हेल्दी, सो यमी, एंड यूज इट एज मच एज यू कैन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है इस चीज के लिए। जी उमेरियान, डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी वन। अच्छा, ये इस्तेमाल करेंगे, आपको अंडों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे 2 एग्स लिए, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि एग का पोर्शन जो होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, वो आपके अपने हाथ में होता है। आप जब महसूस करें कि आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा स्मूथ तो नहीं हो गई है। अगर आपकी स्मूथ हो गई है, 1 एग इज इनफ, आप उससे ज्यादा एग मत लें। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप मेरी जो मैं खाना बनाऊंगी उसके लिए बात कर रही हूँ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। बाज दफा जब हम बहुत सारा, आपने कीमे में भी देखा होगा, जब आप कीमे का कबाब बना रहे होते हैं, नॉर्मल बीफ और या आप किसी मटन का कबाब बना रहे होते हैं, जब आप अंडे ज्यादा डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो काफी स्टिकी होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो सही से बन पाते हैं और ना आप उनको सही से ले पाते हैं। इट्स अबाउट इंस्टेंट। I didn't get your point. Instinct. Okay. Yes, you are absolutely right. तो आप जो है इस सूरत में अंडे बड़े एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। मैं लेती मोस्टली 2 हूँ। जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेफिनेटली मैं 40, 80, 60 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो डेफिनेटली हम एक बूफे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी कैन ईजिली फ्लेक्सिबल, कि हमें पता होता है कि हमने 60 लेने, 80 लेने, 120 लेने, वो हमारे पास उस केसेस के हिसाब से होते हैं। लेकिन जब हम छोटे लेवल के ऊपर कोई चीज़ बना रहे होंगे
तो वो आपको खुद से चेक करना होगा, क्योंकि जब हम इंस्टेंट कोई चीज बना रहे होते हैं उसमें एक भी आपका इंग्रेडिएंट अप एंड डाउन करता है, आपकी चीज खराब हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कम से कम पहले डालें, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहें। अच्छा, इसमें एक इंग्रेडिएंट मैं और इस्तेमाल करूंगी, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं इसके अंदर आपके कोरिएंडर में इस्तेमाल करूंगी। कोरिएंडर के अलावा एक चीज जो इस्तेमाल करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ब्रेड इस्तेमाल करूंगी इसके अंदर। ये मैं ब्रेड लेकर आई हूँ, फ्रेश ब्रेड है मेरे पास, लेकिन ये जो ब्रेड है ये ओट की ब्रेड है, जिसे हम जौ कहते हैं। मैं बहुत यूज करती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बड़ी हेल्दी होती है, ये आपको वीट की नहीं होती है, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा होता कि आपने ज्यादा। जो लोग डाइट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो चीज भी बहुत अच्छी खाएं, बहुत एनर्जेटिक हो वो चीज उनके पास, और उसके उनकी हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ऐसे ना पड़ रहे हो कि उनका वेट गेन हो रहा है। क्योंकि रमजान में हम बहुत खा रहे होते हैं, जैसे ही हमारा अफ्तार होता है तो हमारी इतनी क्रेविंग बढ़ चुकी होती है ना, खुशबुएं देख देख के। कैन यू बिलीव इट, आप लोगों का 18 आवर्स का रोजा होता है, यहाँ पे हम 21 आवर्स का रोजा रखते हैं। आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे हमें जो ना हल्की सी को खुशबू भी आ रही होती है ना, तो वो पिक्चर के साथ आ रही होती है पूरी, और वो बहुत बड़ी सी लग रही होती है, जैसे वो किसी ने जो ना पूरा एक दुम्बा जो है ना वो हमारे सामने रख दिया है, और हमारा जैसे ही अफ्तार होगा ना हमने उसमें कूद जाना है। तो आपको मैं बताऊंगी इसका पर्पस क्या है। ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे वैसे इस्तेमाल नहीं होंगे, ये हम टूना के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जब मैं आपको यहाँ पे अभी बना के दिखाऊंगी जो चीजें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, देन यू विल सी दैट व्हाट इट विल बी। ओके, आई विल स्टार्ट इट। आई विल टेक 2 स्लाइसेस। हमारे जो स्लाइसेस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जो आपके इंस्टेंट स्लाइसेस जो आपके पास, आप जब एक ब्रेड लेकर आते हो तो उसकी जो ब्रेड होती है आपके पास बनी हुई, उसका 1 इंच आपका ये होता है, लेकिन वो जो होता है ना वो 1/3 होता है। अगर आप चेक कीजिएगा अपनी जितनी भी ब्रेड आपके पास आ रही होती है, जब व्हेन यू विल सी द क्वांटिटी, तो ये आपके 1 इंच का 1/3 होता है। तो मैं जब इसको काटूंगी भी ना अपने पास, तो मैं इसका जो पीस लूंगी ना, विच हैज टू बी 1/3, तो मेरे वो 2 होंगे। अब मुझे नहीं पता आप कितना लेना पसंद करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी इस कोई आपका जो ना, सिर्फ मैं आपको इसलिए देना चाह रही हूँ कि इसके डिफरेंट टेक्सचर्स आएंगे आपके पास। आप अपनी ब्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इन केस आपके पास ब्राउन ब्रेड नहीं है, आई विल शो इट टू यू। आप अपनी ब्रेड को बहुत सारा सेक लें तवे पे, मेक इट ब्राउन क्रिस्पी, क्योंकि जब आप उसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो जितनी भी क्रिस्पी होगी ना, आप उसे क्रिस्पी होने दें, लेकिन आप उसको मेक इट ब्राउन, नॉट डार्क ब्राउन, सिर्फ मेक इट ब्राउन, एंड देन आफ्टर दैट आई विल शो टू यू हाउ टू डू इट। नाउ आई विल स्टार्ट माई थिंग्स वेरी क्विकली। कोई जरूरत नहीं है आपको छुरियों की, यहाँ पे जल्दी जल्दी आपने काम करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी विद इन दैट, एंड देन वी विल कम बैक। मैं आपको इसके साथ साथ चलता रहेगा। मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगी, उसके बाद ये मेरा काम फिनिश हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स। देन आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू योर पॉइंट्स, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इट, हाउ यू लाइक इट एंड व्हाट यू लाइक इट। जी जनाब, यही वाली चीज है। महा, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही, आपने रिप्लाई किया है बिनते इकबाल को। ये बिल्कुल ओट्स फ्रेश ब्रेड है। Yes, this is it. Okay, now I will start my things. I will switch my camera and I'll do it like this. Yes. And I'll start. मैं अपनी जो है वो लाइट्स थोड़ी सी ऑन कर लेती हूँ, जिसकी वजह से yes, it will be more good. आप यहाँ से देखते जाएंगे सारी चीजें। ये टूना मेरे पास थी, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। मैंने पोटैटो करके यहाँ पे रखे हुए, ये दोनों रखे हैं, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, एंड देन द सेम टाइम यू गाइस विल सी इट हाउ टू डू इट। मैं साथ साथ आपको ये बताती जाऊं कि मैंने जो है वो ऑलरेडी सबसे पहले कुछ टूना जो है वो सोक करके रखी हुई थी, ताकि वो आप लोगों का टाइम बच जाए उस चीज के अंदर। ये टूना मैंने सोक करके ऑलरेडी रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसका पानी निकल चुका है, बट सेम टाइम आई विल शो इट हाउ टू डू इट। कैसा आपका टूना के अंदर से जब आप इसका पानी निकाल रहे होंगे तो क्या आपको करना होगा। इसका थोड़ा सा चूंकि पानी ज्यादा निकल रहा होता है, मेक इट श्योर आपके पास कोई चीज इंस्टेंट मौजूद हो, क्योंकि पानी फ्लो करता है।
भी मिलते हैं जिनके टिन्स बने हुए होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मैं चूंकि पूरा एक कंटेनर उठाती हूँ, मेरे पास कंटेनर होता है, वो 12 का और 14 का होता है, बाद दफा 16 का होता है। तो ये इट्स अप टू यू हाउ यू डू इट। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये काफी रिस्की होता है, क्योंकि इसकी जो जब हमने ब्लेड काटते हैं तो ब्लेड जो है वो काफी, आप देख रहे हैं इसमें कितना पानी है, आप लोग देख रहे हैं, दिस मेक इट एक्स्ट्रा वाटर आपको नजर आ रहा है। तो ये मैंने इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाला है, और एक्स्ट्रा वाटर निकालने के बाद ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गए हैं। मैंने वहां पे इसको रख लिया है दूसरे वाले को, ये मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाती हूँ। नीटीनेस बहुत जरूरी है, आप याद रखिएगा, चीजें आपकी सिमटी हुई हो आपको बहुत खूबसूरत लगता है काम करना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी भाभी है इंग्लैंड में होती है, मैंने उससे सीखा था कि जब आप काम कर रहे हो ना तो अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें। When you look beautiful, you feel beautiful. When you feel beautiful, you work beautifully. और आप ज्यादा काम करते हैं जब आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे होते हैं अपने आप से। ये आपका यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसकी सारा जो है वो वाटर जितना मुझे निकालना था वो मैं सब निकाल चुकी हूँ। इसको हम इस तरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर सर्कल्स बने हुए हैं। जब मैं इसको कबाब बनाने की कोशिश करूंगी तो ये इसी तरह से जो पीसेज है ना, ये मैश्ड नहीं है, तो ये आपको जो है ना ये फटा फटा सा कबाब बना के देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और सबसे पहले आपके पास जो भी बीटर होगा ना, आपका जो ब्लेंडर होगा, आपने उसको लेना है एंड देन आपने उसके अंदर इसको डाल देना है। वन बाय वन आपकी ये चीजें चलती जाएंगी। मैं सेम टाइम के ऊपर आपको बताती जाऊंगी कि आप किस अंदाज से इसको लेते जाएं, कितना कितना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको सोक कर चुके हैं ना तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप जितनी कोशिश करेंगे ना इसको चलाने की, ये भी मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताती हूँ अभी। जब आप चला रहे होंगे ना तो नीचे वाला आपका सारा जो पोर्शन है ना वो एकदम से ब्लेंड हो जाएगा, ऊपर का नहीं होगा। तो जब आप चला रहे हो ना तो आपने क्या कोशिश करनी है, अपनी मिसाइल से ब्लेंडर के अंदर डालना है। डजंट मैटर आपके पास जग वाला है, आई हैव दैट वन एज वेल। मैं आपको शो करा देती हूँ, ये मेरे पास जग वाला भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं। आपके पास इसके ग्लास होते हैं, आई विल शो यू टू दैट वन एज वेल। आपके पास इस तरह का कोई ग्लास है, आप ग्लास में डालो इसको, टूना को निकालो इसको यहाँ से। आपके पास जो भी आपकी रॉड होती है, आई हैव दैट वन, आप इस रॉड में लो इसको, मेक इट एंड देन ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू वांट। ऐसा आपके पास घर के अंदर कोई भी जग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को ले मेजरमेंट के लिए। मुझे क्योंकि इंस्टेंट इसकी आदत हो गई है इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। दिस इज मोर गुड फॉर मी टू डू इट, सो आई विल डू इट दैट। अच्छा, वन बाय वन हमने काम करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक यही नहीं चाहिए इसके अंदर। मैं जब टूना कर लूंगी, टूना करके मैंने आपके जो है वो पोटैटोज करने हैं, पोटैटोज जब हो जाएंगे तो मैंने ब्रेड्स करनी है। ये तीन चीजों का हमारे पास मिक्सचर होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसे देख सकेंगे वो किस अंदाज से काम करता है। सेम टाइम पे आई विल शो इट टू यू हियर। मैं साथ साथ आपको देखती भी जाऊंगी और मैं इन चीजों को यहाँ से मैं अपना कैमरा स्विच कर रही हूँ एंड देन आई विल स्विच इट हियर। मैं यहाँ की लाइट ऑन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल और हो जाए। यहाँ पे ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ चीजें अपनी एंड देन इट कम्स हियर। ये आ गया है आपका यहाँ पे, मैं ये लगा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। Maha, everybody is getting me. Honestly, I'm loving her professionalism. Oh, thank you so much. Please teach her how to do neat in kitchen. I will show it to you everything. मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ वहाँ आपकी चीजें, लेकिन next time definitely I will just try to do these things which you want. Okay. अभी हम ये देखें, मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है अपने साथ एंड देन मेरी लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको आराम से चलाना शुरू किया है एंड देन सी दैट, सी हाउ वर्क, देन आई इट्स गोइंग टू, क्योंकि ये अप एंड डाउन हो रहा है ना दोनों तरफ से, तो इट्स वेरी इजी। आप इसको आराम से इस तरह से चलाएंगे एंड देन यू विल सी दैट।
आपकी लाइफ को इतना स्मूथ कर देता है ना कि आपकी सोच है, आपके हाथ खराब नहीं होते। अभी तक आपने देखा है मैंने जो भी काम कर रही हूँ वो किस अंदाज से हो रहा है, मेरे कोई हाथ खराब नहीं हुआ इसके अंदर अभी तक, हर चीज बिल्कुल आराम से चल रही है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट हियर पोटैटोस। सबसे पहले आप इसको लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। ये जो ना ये एक फसाद है, अगर ये पहले ना लगाओ तो ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इवन हम शेफ्स के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम पोटैटोस ले लेंगे तो आप जस्ट शो इट फर्स्ट पील ऑफ। देखो ये बिल्कुल इसके अंदर जो ना माइनर सा भी जो बचा था ना, आपका माइनर सी भी जो चीज बची थी वो भी सारी इसमें से निकल चुकी है। अब मैं आपको इसको पील ऑफ करना बड़ा आसान तरीन काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। जब इसके अंदर पानी नहीं है ना तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इसको जो है ना ज्यादा देखें और ज्यादा जो है ना इस पे टाइम लगाएं। देन यू कैन डू इट क्विकली एंड इजीली। बाज दफा पोटैटो जो है ना वो छीलना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हम एज ए शेफ हम जब काम कर रहे होते हैं, देन आई विल शो इट टू यू वन थिंग मोर। हम जो है ना ब्रेड नाइफ उठा लेते हैं, और ब्रेड नाइफ जब हम उठाते हैं ना, ये देखिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आप आलू को जैसे पील करते हैं ना वैसे आप इसको करते जाएं, यह आपको और आसानी देता है। तो मैं कोई भी नाइफ उठा लें जिसकी धार ना हो, धार वाली नाइफ नहीं चाहिए आपको, एंड देन यू जस्ट पील इट। अब इसको चाहें तो आप पोटैटोस को जो है, जैसे मैंने अभी 2 लिए हैं, आई वांट टू चेक इट, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास पोटैटो होंगे ना वो ज्यादा आपको पोटैटो लगेगा, कबाब का नहीं लगेगा। जो आपको टूना का टेक्सचर आना है ना वो नहीं आ पाएगा। तो आपने इसमें डाला है। क्यों हम ये कर रहे हैं, ताकि जब आप इसमें करेंगे ना तो आपके पास कोई जो ना हर चीज जो है ना स्मूथ आ रही होगी खाने के अंदर। आपको ये नहीं होगा कि बात जब आपने देखा होगा जब आप आलू के कबाब बनाते हैं या आलू ले लेते हैं उसमें गुठली आ रही होती है। तो जब आप गुठली, जब आलू की गुठली तो वो जब आ रही होती है ना तो आपका टेक्सचर जो है ना वो बगैर नमक मिर्च वाली एक गुठली के साथ जा रहा होता है। हम वो भी नहीं जा रहे। जल्द से जल्द आपका ये काम करेंगे अब इसके अंदर, और आप देखते जाइएगा साथ साथ कि इसको हम किस अंदाज से मेरे चूंकि मेरे हाथ नहीं धुले हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वंडरिंग। शहजादे चला जाए यार, थैंक यू। ओके आई विल जस्ट वॉश माय हैंड्स देन कम बैक। Okay, this is what I did it. We will do it that thing as well. I'm sorry, it will take not too much time. लेकिन मैं चूंकि आपको बताना इसलिए चाह रही हूँ, सब चीजें सीखेंगी तो आपको मजा आएगा। See that? 2-2 मिनट का काम है आपका, सिर्फ 2-2 मिनट का ये वाला, लेकिन ये आपको लाइफ के अंदर जो ना इतनी स्मूथनेस देगा ना इसके साथ। देख रहे हैं आपको जरूरत नहीं पड़ी इसे साफ करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने एक टेक्सचर दे दिया आपको। ये हमारे हो गए हैं आलू। अब जो लास्ट चीज है उसके बाद हम जल्दी जल्दी सारा काम दूसरे वाली साइड के ऊपर करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि अब आपको चाहिए, यू नीड टू गेट, हमेशा याद रखिएगा एक बहुत ही प्यारा सा आपको एक नुस्खा दे रही हूँ। हम ब्रेड काटते हैं like this, it's a wrong way, ऐसे नहीं काटते ब्रेड, always take it like this। ये हार्ड पार्ट है, ये हार्ड पार्ट है ना आपका, जब ये आप काट रहे होंगे ना तो ये प्रेस नहीं कर रहा होगा आपको। ये वाला जो होता है ना ये सॉफ्ट पार्ट होता है। जब आप कर रहे होते हैं ना तो आपका प्रेशर ऑलरेडी हाथ का भी है, आपके ब्रेड का भी है, आपकी ब्रेड पिचक के पुंडू हो जाती है। नो, ऑलवेज डू इट लाइक दिस और लाइक दिस, इट विल बी इजी फॉर यू। One and then 2, perfect one, take it back। Okay, you take a rest, we need others। ये आपने ले लिए हैं 4 पीसेस। मैं क्यों कर रही हूँ आपके अपने ऊपर, आप जैसे भी इसके चाहो पीसेस करो, जैसे चाहें आप इसको रखो अपने साथ। ये मैंने हार्ड क्यों लिया है, आप देखो जो ये वाला ना, ये वाला पीस घर में कोई नहीं खाता, ट्रस्ट मी, use it use it in a nice way
दी थी तो उसकी वजह से ये देखिए आप यकीन जानिए इसका बड़ा प्यारा टेक्सचर है, बहुत प्यारा टेक्सचर है। नाउ फिनिश, हमारा सिर्फ यहाँ तक का काम था अपनी इन तमाम चीजों का। नाउ हम सबसे पहले प्लग निकाल दीजिए इसको आराम से निकाल के अलग करके रख दीजिए ताकि आपके हाथों को जो चीजें जितनी खराब हुई है ना सिर्फ उतनी ही संभालनी पड़े, उससे ज्यादा ना हो। Take it that and I'll switch it to another place. She told to इसको can we use white bread instead of, देखें उम्मयान आपका जो दिल चाह रहा है ना आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है माय डियर कि यू हैव टू डू इट, आपको सिर्फ एक ही तरह की कोई चीज करनी है और उसके अलावा आपने कोई और चीज यूज नहीं करनी है। नो माय डियर, जरूरी नहीं है। व्हाटएवर व्हाट यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको साथ ही साथ जो है वो और चीजें भी चलाती जाऊँ। मुझे नहीं पता आप में से किस किस को कौन कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी आती है। मैं चूंकि बड़ी छुरी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे अच्छी खासी आदत हो गई है इस चीज को इस्तेमाल करने की। आप लोगों को मैं सिर्फ तरीका बताती जाऊंगी, जब भी आप लोगों को मेरे साथ काम करने का दिल चाहेगा आपको मैं बता दूंगी। ऑल्दो मेरे जो ये वाली फिंगर है मैं इसी से काम करती हूँ, मेरी इसी फिंगर में प्रॉब्लम भी है, लेकिन चूंकि मुझे काम के मामले में मैं इतनी यूज्ड हूँ। जब भी आप इस तरह से काट रहे हो, एक तो प्याज काटने में बहुत कम से कम टाइम लगता है, दूसरा आपने देखा होगा ये जो साइड होता है ना जहाँ पे आपकी जड़ होती है, आपने उसके पास से नहीं काटना। मोस्टली जो लोग काम करते हैं जैसे उनके पास ये अनियन होती है तो अनियन को ऐसे ही काट लेते हैं वो इसके साथ, उसके बाद उसको यहाँ से पील ऑफ करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, लेकिन इस पार्ट को रहने देते हैं। उसके रीजन बताऊंगी मैं आपको क्या होता है कि जब आप इस तरह से काम कर रहे होते हो ना, जैसे मैंने ये अभी आपको कट्स डाल रही हूँ, मेरे कट्स के अंदर 1 या आधा इंच का डिफरेंस आ रहा है, मैं ये काट ही नहीं रही है जगह, मैं सिर्फ यहाँ से काट रही हूँ अनियन को। आप देखते जाइए इस चीज को साथ साथ ये, और इसके लिए कोई सी भी छुरी ले सकते हो। इट डजंट मीन दैट छुरी विच आई एम यूजिंग, आपने हल्का सा ये ऊपर से कट लगाना है और एक हल्का सा नीचे से, इट डिपेंड्स, वो ऑलरेडी आपको नजर आ रही होंगी क्या बन गई है। ठीक है, ये छुरी हम यूज करते हैं। एक दूसरी छुरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत यूज होती है हमारे पास, ये ब्रेड नाइफ टाइप की छुरी होती है, लेकिन इट वर्क अ लॉट। और जो तीसरी छुरी मैं अपने पास यूज करती होती है, व्हिच आई विल शो यू टू यू, दिस इज दैट वन। हम ये जब मैं गोश्त काट रही होती हूँ या कोई काम कर रही होती हूँ, इट्स वेरी वेरी नाइस फॉर मी टू डू इट। मेरे पास आई एम सॉरी 3 छुरियां हैं, मेरी जो लैंड लेडी हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, वो कहती हैं ये बुचर वाली छुरियां हैं। ये आप देखते जाओ हाउ आई डू इट और कितनी जल्दी कट रहा है, ये देखिएगा। मैं आपके लिए स्लो काट रही हूँ, लेकिन आप देखिएगा कंसिस्टेंसी सेम है, साइज सेम है, स्मूथनेस देखिए आप, और आपकी अनियन भाग नहीं रही। आपकी अनियन कहाँ है? आपकी अनियन आपके हाथ में है। एंड दिस इज इट। ठीक है, अब ये आपने कर लिया, क्योंकि मैं कैमरे को फोकस कर रही थी इसलिए मैं देखा नहीं था। मैं आपको कुछ इस तरह की कुछ और भी जो ना चीजें बताऊंगी कि आप किस अंदाज से अपनी प्याज को जो है वो आप काट सकते हैं बगैर रोए। वो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि आप किस अंदाज से अपनी वो प्याज जो आपको अजाब लगती है, स्पेशली मुझे लगती है क्योंकि आई क्राई अ लॉट जब मैं प्याज काटती हूँ ना यार, ट्रस्ट मी, मुझे इतना रोना आ रहा होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, ये आपकी प्याज बड़ी स्मूथ सी हो गई है। अब ये जब आपने प्याज ले लिए, दिस इज वी ऑल्सो पुट इट हियर। ये हमने साथ में अनियन डाल दिया। अनियन के साथ ही साथ सेम ही टाइम के ऊपर आपने कुछ और नहीं करना है, आपने धनिया की कुछ लीव्स लेनी है अपने पास। आपके पास फ्रेश धनिया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पास फ्रेश भी होता है और नॉन फ्रेश भी होता है। जितना बारीक धनिया कटा हुआ होगा ना, आप यकीन जानिए टेक्सचर में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जितना बारीक, जितना आपने वैसा मोटा हर धनिया डालेंगे ना, वो मुंह में भी आता है, वो आपको जब आप तल रहे होते हैं ना तो वो धनिया जल जाता है बास दफा, तो उसका जो ना ऑयल के अंदर एक अजीब सा उसका एक मजा आ रहा होता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूरा नहीं डाला है, माइंड इट। मैं पहले चेक करूंगी कि हाउ मच क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी नेसेसरी। वी मस्ट हैव टू नो
how much quantity we required. I was just thinking it a little extra, no issue, I will just take it here, not to make it here. ठीक है जनाब, ये हमारे पास आ गया है। अब मैंने जो आपको बताया था इसमें हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, टूना फिश, पोटैटोज, ऑनियन, और चौथा जो है वो आपने इस पे कोरिएंडर डाला है विच इज कॉल्ड हरा धनिया। हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स नहीं डाल रही हूँ अभी, माइंड इट, ठीक है। ब्रेड क्रम्स में लास्ट में डाल के आपको सिर्फ ये चेक कराऊंगी कि ब्रेड क्रम्स क्यों डालने हैं आपने। इसकी क्वांटिटीज आप याद रखिएगा अपने पास। मैं टेबल स्पून लिया है मैंने, लेकिन चाहिए हमें टी स्पून होगा। हाउ मच विल बी टी स्पून, आई विल शो इट टू यू। दिस इज, ये आपका एक हाफ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। क्यों लिया है मैंने ये हाफ टी स्पून से ज्यादा, उसका रीजन ये है कि मुझे एक और डालना है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो जाए अभी से, जब तक मैंने उसे चेक ना किया। तो हम डालेंगे दूसरा वाला भी आपका, और दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट द सेम साइज, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये दोनों आपने गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। आपको चाहिए इसके अंदर, अच्छा ये बात याद रखिएगा, जब आप गरम मसाले ये दोनों चाट मसाले डाल रहे होते हैं, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो आपकी जो इसकी सॉल्ट की क्वांटिटी होगी वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इन दो के। व्हाइट वाला सॉल्ट ले रहे हैं, बी केयरफुल, ये वाला सॉल्ट इतना सॉल्टेड नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। आपका ये वाला सॉल्ट जो मैंने भी लिया है, ये अगर आपने व्हाइट वाला सॉल्ट लिया होता तो ये आपका बहुत ही छोटा सा होता। ये मैंने अभी जो लिया है वो हाफ टी स्पून लिया है, वो जो होता है वो हाफ से भी हाफ होता है, जैसे आप 1/4 कहते हैं ना, वो 1/4 आपका होता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आपको उसके हिसाब से अपना चेक करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपने काली मिर्च भी डालनी है। अच्छा मैं इसमें क्यों नहीं डाल रही हूँ लाल मिर्च, वो मैं आपको हरी मिर्च ना डालने का इसका एक रीजन है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्वेजियन पीपल जो है वो हरी मिर्च से उनको मोस्टली एलर्जी होती है। ये जो मैं अभी डाल रही हूँ आपका, ये मैं आधा चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च डाल रही हूँ। दे लव ब्लैक, दे लव रेड, लेकिन रेड भी जो है ना वो रेड पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो मिर्च नहीं इस्तेमाल करते हैं। और रेड अगर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो एक शिमला मिर्च की तरह का होता है, रेड पेपर, वो कहते हैं वो इसे यूज करना चाह रहे हैं। ये मैंने आपका इसमें ये डाल दिया है, 3 चीजें। अब जो 2 चीजें अब हमारे पास रहती हैं, एक मैंने इसके अंदर जीरा डालना है, ये मैंने ऑलरेडी भून के रखा हुआ है। जीरा जब भी भूनेंगे आप इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, बिकॉज जीरा नॉट लुक्स गुड, आपका टेस्ट नहीं देता वो वाला जो आप ग्राइंड करते हैं। ये आपके पास जो जीरा है, आपने इसको लेना है अपने पास, और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बैठे बैठे, कहीं पे भी टीवी देख रहे हैं ना, कोई प्रोग्राम आ रहा है, आप हाथ में ले लें इसको अपने पास और ये कर लीजिए। या फिर आपका, और आपने इंस्टेंट चाह रहे हो तो हाथ से वैसे ज्यादा मजेदार होता है, लेकिन आपने बेलन लेना है और बेलन से इसको हल्का सा कूट लेना है। या फिर आपके पास भी, जैसे मेरे पास अभी वो मौजूद है लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, आप उसमें भी डाल के कर सकते हैं। आई कैन शो इट टू यू, व्हाट इज इट, यू कैन यूज इट दैट वन। आप इसके अंदर भी डाल के आराम से इसको 2 मिनट के लिए कूटो, मिसाल के तौर पर ये मैंने किया, एंड देन आपने ढक नहीं करना, आपने सिर्फ घुमाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भुना हुआ है ना। ये देखो एक लम्हे में ये क्रश हो गया, एंड इट्स, ओह क्या स्मेल दे रहा है, ओह आई लव इट। मेरे ख्याल में इसका हमें परफ्यूम बनाना चाहिए, इसका और गार्लिक का जो ना परफ्यूम आने चाहिए, वो जब हम जो ना किचन में काम ना कर रहे हो ना, देन वी यूज इट, आई लव इट। मुझे 2-3 चीजों की जो स्मेल है ना वो इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ओके, हमने ये आपका ले लिया है, साथ में आधे चम्मच से ज्यादा लेना है। उसकी वजह ये है कि हमने अभी जो ना 3 डब्बे लिए थे, मैं आपको बता दूंगी कि उनकी क्वांटिटी कितनी थी। मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ थोड़े, उसका रीजन ये है कि अभी मैंने जब एग डालना है ना, देन आई विल चेक इट हाउ इट्स लुक लाइक। हमारी सारी चीजें हो गई हैं सिवाय इसके अंदर 2 चीजों के। मैंने इसमें अभी अंडे नहीं डाले, मैं अभी अंडे डालूंगी क्योंकि उसके बाद मैंने जो हाथ से काम करना है, तो आप देख रहे हो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, आई कैन नॉट यूज इट, तो आई विल वेयर ग्लव्स एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टू डू इट। दिस विल बी आवर लास्ट थिंग। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज और बतानी है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको शो करूंगी। इसके अंदर मैंने एक मसाला डाला है, लोग आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी किस्म का शामी कबाब मसाला या कोई भी डाल सकते हैं। मैंने एक चपली कबाब का, एक मेरे पास स्पाइसी सा मसाला है, मैंने वो चपली कबाब का मसाला डाला हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये मैंने इसलिए ज्यादा डालना है क्योंकि इसके अंदर आपका साबुत धनिया मौजूद है, इसमें आपकी सौंफ मौजूद है, इसमें आपके थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जैसे अमचूर मौजूद है, तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक टेक्सचर देगा जो आपको खाने में यमी फ्लेवर देगा। अब आ जाते हैं हम अंडों की तरफ।
आपको ये अंडा जो हमने डाला है ये आपका बैठता कैसे। नाउ आई विल डू माई बेस्ट थिंग टू वेयर माई ग्लव्स। सबसे पहले हाथ साफ कर लूं मैं अपने, क्योंकि ये बड़ा जरूरी काम होता है। आप जब ग्लव्स पहन रहे हो आपके हाथ जो हैं वो ऑलरेडी नीट ही हो। और सेम टाइम पे हम ले लेते हैं आपको भी। Oh my God, I smell like this combination over here. Wow, great. Okay, thank you Maha. If you are getting that, then it's very good. अब मैं आपके सामने अभी ग्लव्स पहन रही हूँ अपने, and then I'll start at that. ये मुझे लग रहा है, अच्छा एक चीज बड़ी आपको मैं बताती हूँ, ये जो मैंने अभी पहना हुआ है दिस इज नॉट मीडियम, दिस इज लार्ज, इसलिए आपको इसका पता चल रहा है आपके हाथ से। तो आई विल टेक इट अनदर वन जो कि मेरे मीडियम ग्लव्स है। ये देखिएगा ये सेम साइज के हैं, तो मैंने सेम साइज का अपना ग्लव्स उठा लिए एंड देन आई विल स्टार्टेड विद यस। Now I am ready, my dear. Everything is ready as I am ready. मैंने एक अंडा लिया है, सारी चीजें मैंने यहाँ रखी हैं, लेकिन अपनी सारी चीजों को सॉर्ट करके मैं वापस लेके जा रही हूँ और मैं ये हटा दूंगी इसके ऊपर से। उसका रीजन क्या है कि आपने जब अपना कोई काम करना होता है तो आपके पास चीजें जो होती हैं वो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। अभी मुझे अपना ये जो बाउल है ये छोटा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट आई विल चेक इट इफ इट विल गो very good. If it's not, so I will change it in some other. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सारी चीजें इसके अंदर हो गई हैं। आपने देखा है मैंने इसमें कोई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की है, मैंने इसमें हरी मिर्च भी इस्तेमाल नहीं की है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब हम कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमारे पास अपना टच भी आए, लेकिन जो एक्चुअल टच है ना वो हम ना भूलें। वो अगर हम निकाल देंगे तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। अब मिसाल के तौर पर आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जे के अंदर जो उन्होंने ऊपर की स्टफिंग होती है, लेकिन वो पिज्जे की डो नहीं चेंज की ना उन्होंने, क्योंकि पिज्जे की जो डो होती है उसका एक टेक्सचर है जिसकी वजह से आप पिज्जा खाने के लिए जाते हो, जिसकी वजह से आपको कहीं और का पिज्जा अच्छा नहीं लगता। आपको मखसूस कुछ जगहें हैं जहाँ के पिज्जे अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉर्वे में पिज्जा हट नहीं है, सो आई रियली डोंट नो के ओह इट्स यमी। ये बहुत ही मजे के हो गए हैं अभी। ऑल्दो अच्छा इनको जो ना बहुत ज्यादा कोई आपको मैशिंग भी नहीं करनी होती है। ये आपका चूंकि हर चीज स्मूथ है ना, तो वो टेक्सचर इतने मजे से इसके अंदर जा चुका है कि आपको जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। अगर आप बैठ के अभी इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, देन यू विल सी दैट इट विल टेक नॉट मोर देन टाइम। और मैं आपको बता दूं इसमें जो ना किसी सूरत मेरे ख्याल में शायद 16 तो बनेंगे ही बनेंगे। I will just check it how much it will be, then we will work on it. Okay जनाब, it's ready now. आप देख सकते हो पूरे तरीके से मसाला चारों तरफ जा चुका है। आपको ना इसके अंदर कहीं आलू नजर आ रहे हैं, ना इसमें कहीं ब्रेड क्रम्स नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कीमे के कबाब है, एंड ट्रस्ट मी इट्स सो डिलीशियस। चूंकि हम यहाँ बनाते हैं ना, आप यकीन जानो जब हम बना के रख रहे होते हैं ना, और तो वो हमारे बनाने के दौरान ऐसे मजे से जो है ना वो खत्म हो रहे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सफाई का ख्याल रखेंगे आप, जैसे आप अपने आटे का बर्तन होता है, जब आप आटा गूंद रहे होते हैं तो आपको जिस अंदाज से अपने आटे का बर्तन सुथरा रखना होता है ना, ताकि वो लगे भी कि आपने आटा गूंदा है, आपने आटा साना नहीं है। आप सुनते हैं ना कुछ लोग कहते हैं हमने आटा साना है, तो वो जो सानने का मतलब होता है ना वो आपने नहीं करना है, आपने आटा गूंदना है। इट्स रेडी नाउ। हम स्टार्ट करते हैं अब इनकी बनाना। आ जाइए जनाब, वन बाय वन। हाउ मच यू वांट, यू मस्ट हैव टू नो कि आपने क्वांटिटी क्या रखनी है। अगर आप ये क्वांटिटी रखेंगे, ये मीडियम कबाब की क्वांटिटी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये एक मीडियम कबाब की क्वांटिटी है। अब हम लेंगे लार्ज, जो आपका एक नॉर्मल, आपका कुछ लोगों को कबाब जो है वो घर में बड़े खाने की आदत होती है। ये है उसका डो, आप देखते जाइएगा एंड सी द डिफरेंस। आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। आई मेक इट इन अ राउंड शेप। मैं भी आपको बताती हूँ कि कितने शेप्स के
हम बनाते हैं. This is in a round shape. अब ये देखिएगा आप, what I'll do it. ये मेरे पास राउंड है and suddenly I press it like this. ये मैं प्रेस करती जा रही हूँ एक हाथ से, और ये भी आप देखिएगा ये क्या बनता जाएगा. ये हमारे वहां पे जो है ना अक्सर बच्चे आते हैं ना, जब they need a hard shape, देख रहे हैं आप, ये बड़ा खूबसूरत सा बनता है. जब आप बना लेंगे ना इसको, सी दैट, ये बड़ा प्यारा सा लगता है. या आप इसकी हार्ड शेप जो है वो जितना आप नीचे प्रेस करेंगे ना, ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी. अब आपके अपने ऊपर है कि आप इसको सेंटर पोजीशन में कैसे लेते जाते हैं. ऊपर से लगने वाली चीज अजीब सी, कोई जरूरत नहीं उसको कंसीडर करने की. उसके रीजन बताती हूँ आपको. आपको अभी ऊपर से अजीब सा लग रहा है ना, इसे ऊपर से अजीब सा लगने दें, लेकिन इसकी एक मजेदार सी चीज देखिएगा. ये भी मैं ऊपर से शेप बना रही हूँ ना सारा. जब आप पलटते हैं ना, तब वो खूबसूरत तरीन शेप दे चुका होता है आपको. सो डोंट थिंक टू मच. बड़ा प्यारा लगता है, बच्चे बड़े मजे से पसंद करते हैं. इट डिपेंड्स कि आप कौन सी शेप बनाना चाह रहे हो. ठीक है, ये आपका ये बन गया है हार्ड शेप का. ओके, यस, सी दैट हाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल. चलो बाकी हम इसके और स्टार्ट करते हैं, जो आपके गोल वाले हैं. आप जब हाथ में लेते हो ना कबाब, आपको जो ना दूसरे तीसरे कबाब पर ही आपको एहसास हो जाता है कि आपका कबाब का जो आपने ये जो डो उठाया है वो क्या बैलेंस हो रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ. ये आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपने जब एक पहला वाला उठाया होता है ना, इट्स अ ह्यूमन नेचर. वो आपको फौरन के फौरन आपको बताना शुरू करता है कि यार ये जो ना थोड़ा सा ज्यादा ले लिया. हेलो, आप लोगों के पास आ रही है ना मेरी आवाज? डू यू गाइस गेट इट दैट? अब ये हमने कबाब बना लिए हैं. ठीक है, अब मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, और अब आप लोग देखिएगा साथ साथ. ये हम यहाँ पे इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के साथ साथ हम पहले जाएंगे, मैं पहले साथ साथ, क्योंकि मेरे पास वो चलता जा रहा है कैमरा, ये मैंने अपना जो है वो पैन ऑन कर दिया है. मेरी चीजें साथ साथ चल रही हैं. इट्स ओके, क्योंकि अगर मेरे पास जो है ना, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे अगर ऑफिस से या कहीं से मेरा कोई मैसेज आ रहा होता है, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर टू दैट एप्लीकेशन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ. सो मेरी जो है ना ये स्टक हो जाता है, जिसे मैंने रीसम करना होता है. थैंक यू सो मच, यू टोल्ड मी, सो आई गेट इट दैट. अब आ गई है. आप लोग मुझे बता दो कि कहाँ से आपकी नहीं आई है, तो ताकि मैं उसको स्टार्ट कर दूं दोबारा से वहीं से. व्हाट वाज माय लास्ट वर्ड्स विच यू गाइस गॉट इट? Can anybody elaborate it or send me the text, or otherwise it's okay? You guys have seen that when I make it that kebabs? All is good? That's good. Okay, मैंने स्टार्ट किया है. नॉन स्टिकी पैन लिया है मैंने अपने साथ में, और नॉन स्टिकी पैन लेने का रीज़न ये है कि आपको कम से कम इसमें ऑयल लगेगा, और कम से कम ऑयल लगने की सूरत में आपके कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे. आपको कबाब के अंदर ज़्यादा नहीं, मैं स्टार्ट लेती हूँ ऑलिव ऑयल इसके अंदर. मैंने सिर्फ, आप देखिएगा मैं ऑलिव ऑयल कितना डाल रही हूँ. मैंने ऑलिव ऑयल की कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखी है इसके अंदर. ये देखिएगा, मैक्सिमम जो लिया है वो मैंने 1 कप लिया, वो 1 चम्मच लिया है. 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं है ये. और मैं इसकी ब्लेंडिंग भी नहीं कर रही हूँ कि मैं ब्रश से इसको चारों तरफ कर दूँ, नहीं, इट्स नॉट, नो नीडेड. जब आपके पास नॉन स्टिक पैन होता है तो उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती आपको. ये मैंने मैक्सिमम पे रखा हुआ है अपना. इसको मैं मैक्सिमम पे रख के जब मैं कबाब इसके अंदर रखूँगी तो मैं इसका फ्लेम 2 ग्रेड डाउन कर दूंगी. उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी आपको कि हम 2 ग्रेड डाउन क्यों कर देंगे इसको. यानी आप इसको जब आप फ्राई कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरत होती है इन द बिगनिंग थोड़ी सीजलिंग की. जब वो सीजलिंग हो जाती है तो आप चाहते हैं कि वो अंदर तक से जो है ना आपका कबाब बन रहा हो, जले बगैर. तो आप जब शुरू में बना रहे होते हो तो उसको थोड़ा सा आपने बहुत ही तेज़ आंच पे रख के, उसके बाद जब जैसे ही आप उसमें कबाब डाल दोगे तो उसकी आंच को थोड़ा सा पलटने के बाद आपने उसकी आंच थोड़ी स्लो करनी होती है, ताकि वो अंदर तक जो है ना वो आपको उसका जो आप कुक कर रहे होते हो वो आपका कुक हो सके. ओके, आई विल जस्ट सी दैट. नो, इट्स नॉट दैट मच. जो मुझे अभी फ्लेम इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो भी पूरा नहीं हुआ है. I will just see. Yes, yes.
उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरा पेन जो है ये बेसिकली मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये पाकिस्तान में, और इट्स ब्यूटीफुल वन। आई कैन नॉट, मैं इसको निकाल नहीं सकती, सो आई लव इट। और वैसे भी आप जो चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आते हैं उनके लिए आपकी एक अलग सी प्रीशियस सी फीलिंग्स होती हैं। सो आई यूज दैट वन। ओके, टाइम टू स्टार्ट नाउ। मैं एक डाल के देखती हूँ कि आपका कबाब का, यस अभी हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डाल चुकी हूँ इसलिए मैं वेट करूंगी अब इसका। आप देख रहे होंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम के ऊपर आ रहा है। सी दैट? अभी जब आपके फ्लेम के अंदर आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि इनका टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है। तो जब आप इनके टेक्सचर को देखेंगे, और वैसे भी यार जब आप इंजॉय कर रहे होंगे ना अपना काम, आई एम 100% श्योर यू विल लव इट। आप थोड़ा सा अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दो ना जिस टाइम पे भी, आप यकीन जानिए वो हैसल नहीं होता वो आपके लिए, फिर वो आपके लिए जो ना एक थेरेपी हो जाता है। और जब आपको इस किस्म की थेरेपीज आना शुरू हो जाती है ना लाइफ के अंदर, तो आप यकीन जानिए एक जुमला जो ना वो बड़ा प्यारा सीख लेते हैं हम उन थेरेपीज के साथ। वो पता नहीं आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा, उसका मतलब होता है आई डैम केयर। आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या नहीं सोचते हो, आई डैम केयर। ठीक है, जब आप खाओगे ना खाना तब आप बोलना, अभी आप कुछ भी कहते रहो आई डैम केयर। जब वो चीज आपके सामने आ जाएगी ना तब आपको पता चलेगा, तब आप बताना शुरू करते हो कि यार वो क्या चीज है। ये देखिए आपके ये कबाब्स बनने शुरू हुए हैं, अभी इसके अंदर से फ्लेम उठना शुरू हो गया है। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टर्न इट एंड देन आफ्टर दैट आई विल वर्क ऑन इट। ये देख रहे हैं आप कलर, कलर लाइट आ रहा है अभी, लेकिन लाइट आना ज़रूरी है अभी। उसका रीज़न है क्योंकि हमने जो ना जल्दी टर्न कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है जल्दी टर्न करने का, क्योंकि हम दोनों तरफ से जो ना देर तक फ्राई करेंगे ना इसको। जब आप देर तक फ्राई करोगे, हैप्पी बर्थडे, दोनों मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ। वेट अ लिटिल, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और आपके साथ बातें करती जा रही हूँ। सेम टाइम पे मैं उसको, जिन्होंने दोस्ती कर ली है कबाबों ने, उन दोनों को ज़रा एक दूसरे के साथ कहूँ उनसे कि भाई दोस्ती कीजिएगा, ज़रा बात है, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया है। नाउ माय डियर सी दैट इट्स टाइम टू सी अगेन। आप ये देख सकते हो, नज़र आ रहे हैं आपको, ये जब मैंने डाला है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो ना आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाला है, और साथ में मैंने अब ये जो ना देखें धुआं उठना शुरू हो गया। नाउ आई विल टर्न दैट फ्लेम टू गेट डाउन। देखो भाई बुशरा, बातें और काम साथ साथ नहीं होगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आपको मजा नहीं आएगा ना काम करते हुए, यू डोंट फील गुड। आप एक काम कर रहे हो ना, ये एक टास्क की तरह करो। आपको किसी ने एक टास्क दिया है, गिव इट टू योर बेस्ट, नथिंग एल्स। आपको, आपने देखिए ना कुछ फिल्मों के अंदर बताते हैं ना कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब पता है आपको क्या होता है? और ओवर कॉन्फिडेंस की एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कोई काम दिखाया जाता है, आप ये कहते हो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस है आपका जो आपको बता रहा है कि यस आई कैन डू इट। लेकिन अगर आप ये कहो ना कि मैं ही ये काम कर सकती हूँ, जैसे आपके सामने मैं भी खड़ी हूँ और मैं कहूँ यार ये काम मैं ही कर सकती हूँ, कोई और ये कबाब बना ही नहीं सकता, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की जो है ना नेगेटिव जो है वो जड़ें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। जब आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएंगे ना, यार मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ट्राई करने के लिए पैदा किया है इस दुनिया में। आप यकीन जानिए, और कोई काम ही नहीं है हमारे इस दुनिया में। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप ट्राई कैसे करते हो। देने वाली चीज उसकी है, आपके हाथ में जायका। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो फेस के ऊपर बहुत ही प्यारा प्यारा मेकअप करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो अट्रैक्शन नहीं आती। जो कुछ लोग बड़ा ऑर्डिनरी सा मेकअप करते हैं, उनके चेहरे पे बड़ी अट्रैक्शन आ जाती है। ये अल्लाह ताला की दी हुई कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका मेरा हाथ जो है ना वो सिर्फ कोशिश की हद तक है। आप अपने आप को कितना सिंपल रखते हो, देन यू लुक ब्यूटिफुल। अगर आप अपने आप को सिंपल नहीं रखते हो और आप अपने आप को ये चाहते हो कि आप ब्रांड से अच्छे लगो, एक बात याद रखिएगा,
एक्स्ट्रा चीजें आपको उस वक्त तक ब्यूटीफुल जो बना सकती है ना, वो एक खास टाइम के लिए बना सकती हैं, एक लम्हे के लिए। लेकिन जो चीज आपकी सस्टेन करती है ना, वो आपकी ये होती है कि आपकी इनर ब्यूटी आपको सस्टेन कराना सिखाती है। आप एक, हर बंदा जो है ना, जो लोग टॉप कर लेते हैं, आपको पता है टॉप करना इतना मुश्किल नहीं होता, उस चीज को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। आपको कोई भी चीज अच्छी मिल रही हो ना, आप उसको सस्टेन करें तो आपको पता चलता है, वाओ यार, वो देखो उन खातून को तुमने देखा यार, वो ऑलवेज लुक गुड, वो हर वक्त जो है ना वो हैप्पी मूड में रहती है, हर वक्त। आपने जुमला सुना जो हर वक्त होता है ना, अब ये कलर देखो, आए हैप्पी टू यू हो गई। अच्छा कोई बेचारा टूट जाए ना, तो डोंट फील दैट, उसका दिल रखे हो बेचारा टूट गया है, देखो ये नाराज हो गया ना, तो थोड़ा सा टूट गया, तो उसको पैम्पर करें बेचारे को। आप अपने खाने से बातें किया करें, आप अपने खाने को बताएं, यार नाराज नहीं हो, देखो मैं तुम्हें जला रही हूँ, देखो नाराज नहीं हो ना तुम, अगर इतना नहीं करेंगे ना तुम्हारे साथ तो तुम अच्छे नहीं लगोगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आप बातें करते जाएंगे ना अपनी चीज़ों के साथ, अपने फूड के साथ, इट डजंट मीन दैट कि आप कोई स्टूपिड है या कोई और चीज़ है, इट मीन्स आपको अपनी चीज़ों से प्यार है। जो आप काम कर रहे हो ना, वो आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको किसी ने बोझ बना के दे दिया है। मेरे साथ ऐसा होता था यार, आई हैव स्पेंट दैट लाइफ, आई फेल दैट मेरे ऊपर तो बर्डन आके पड़ गया यार, मेरी जिंदगी इज हेल, बट आफ्टर दैट आई फील सो गुड। जब मैंने रियलाइज करना शुरू किया अपनी लाइफ की चीज़ों को, देन आई रियलाइज यार मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर गलती कर रही थी। वो चीज़ें जब आप बाहर रहते हैं ना, तो आपको अपनी अम्मी, आपको अपने घर वाले, सबसे बड़ा प्यार होता है, पता है आपको? वो इसलिए कि वो जो बातें वहाँ पे होती है ना, वो आपको याद नहीं आ रही होती हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लाइक द सेम आप लोग जैसे अभी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना अपनी अम्मी को और सबको। हमसे पूछिए बच्चों, जब हम बाहर होते हैं ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, हमारी अम्मी ने जो हम बचपन में डांटा होता है ना, कभी दुपट्टा सही से नहीं लेते हो तुम लोग, तुम्हें दुपट्टा नहीं पहनना जाता, यू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन वी विल गो। अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं या आप किसी की शादी में जा रहे हो, आप किसी की शादी में या कहीं पे जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसी बातें अम्मी की तरफ से या सबकी तरफ से आ रही होती हैं। बट माई डियर, लिसन वेरी केयरफुली, उस टाइम पे आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जब टाइम गुजरता है ना, तब आपको याद आता है कि वो चीज़ें जो आपकी मदर ने आपको बताई थी, विच वॉज सो प्रीशियस, वो आपको ज़िंदगी में कहीं और नहीं मिलती। अच्छा, अब मैं ये ऊपर रख रही हूँ आपको थोड़ी सी देर के लिए, और फिर आप जो है इसको देखिएगा, ठीक है? मैं इसको कैमरे के ऊपर रख रही हूँ ताकि मैं डिश आउट कर सकूँ। ये कबाब इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है? अब मैं ये रख रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ रहिएगा। Okay, here it is. See that? ये आपके कबाब्स रेडी हैं। देखें, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आराम से मीडियम साइज के आपके में 16 कबाब बन सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी भी, बाद में इसकी वीडियो भी दिखाऊंगी साथ साथ, क्योंकि मैंने बड़े वाले कबाब बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, इसलिए ये ऐसे बने हैं। ये हमारा एक दिल है जनाब। रमजान में आप बनाइए इसको और आप लोग डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, आप लोगों को मजा आएगा खाने में। और ये साथ में इन द मिडल, ये आपका केचप आ गया है साथ में आपके पास, और फिर आपने थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। यस, सो हियर इट इज, इट्स रेडी। आपने लिए हैं मेरे साथ, आपने बैठ के मजेदार तरीके से एंजॉय किया और बनाए हैं।